अस्सलामुअलैकुम। B+ चैनल में अब तक की खबरों के साथ मैं हूं सरोज चौधरी। चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन फ़र्म के इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि पुलिस की ज़ेर हिरासत ख़वातीन के मुसलमान हक़ूक़ की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और दौरान हिरासत इनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने की भी कोशिश की जाएगी ताकि कानून के तकाज़ों के पूरा होने पर ख़वातीन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। जेल में कैद व दारुल रमान में मुक़ीम ख़वातीन को कानूनी इमदाद देने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। इजलास की सदारत चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फारूक अहमद खान ने की, जबकि DSP लीगल बहावलपुर जमील अख्तर चौहान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बहावलपुर चौधरी नवीद खलील, CDC डायरेक्टर प्रोग्राम रज़िया मलिक, कैंपिंग ऑफिसर अलीम अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना और दीगर अरकान भी इजलास में मौजूद थे। DSP लीगल जमील अख्तर चौहान ने इजहार ख्याल करते हुए तजवीज़ दी कि दारुल रमान में मुक़ीम ख़वातीन की ब्रेन वॉशिंग की जाए ताकि वो अपने हालात को सही पस मंज़र में समझने के लायक हो सके। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नवीद खलील ने कहा कि मुल्क की अक्सरती आबादी नाख्वानगी का शिकार है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में शरह ख्वानगी बहुत कम है, इसलिए वो निकाह नामा की अहमियत और शराइत से अदम वाक़फ़ियत की वजह से भी अपने जायज़ और मुसलमान हक़ूक़ से महरूम रहती हैं। डायरेक्टर प्रोग्राम रज़िया मलिक ने बताया कि गुज़श्ता दिनों निकाह ख़्वानों के साथ तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान उन्हें निकाह के वक्त अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। बाद अज़ान सदर मजलिस फारूक अहमद खान ने कहा कि पुलिस की ज़ेर हिरासत और दारुल रमान में मुक़ीम ख़वातीन के साथ मुसलसल राब्ता रखा जा रहा है। Me, Mazhar Shahzad from B+ CNN with latest updates. The 47th Defence Day is being observed today, 6 September, with renewed pledge and commitment for the defence of the country. The day dawned with prayers in Army units, naval establishment and Air Force bases for the progress and prosperity of the country. Special prayers would be offered for the eternal peace of the Shuhada who laid down their lives in the defence of the country. On this day in 1965, Pakistan's valiant armed forces and the entire nation stood united to foil the nefarious designs of the enemy, who attacked, cast an evil eye on the territorial integrity and sovereignty of the country. Special messages from the services chiefs would be read out to the troops of Army, Navy and Air Force. Wreath-laying ceremonies would be laid at the graves of the recipients of the Nishan-e-Haidar, the country's highest gallantry award. Ceremonies would be held to pay homage to the country's brave sons who had demonstrated indomitable courage and valor in the defense of the motherland. The President, in a message of the Defense Day of Pakistan, said that Pakistan was a moderate, tolerant and peaceful nation where political choices were made by the ballot. President Asif Ali Zardari has said that the dark forces of extremism, militancy and sectarianism are posing a serious challenge to the integrity of the nation, but no one will be allowed to endanger its existence. The President also paid homage to the great sons and daughters who laid down their lives in defending the national frontiers. Prime Minister Raja Parvez Ashraf, in his separate message, said that 6 September is a day which represents the nation's unwavering commitment to the unify in the face of challenges. I have complete faith in the people of Pakistan and our armed forces. If we maintain unity in our ranks and remain resolute in the face of odds facing us, there is no reason why we cannot defeat the nefarious designs of our enemies and overcome the challenges that confront us, the Prime Minister said. The Prime Minister said, "Let us reiterate our pledge to safeguard our independence and integrity. Let us focus our energies for the welfare and progress of our people." सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी इजाजुल हक ने बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान अगर सूबा बनाने के लिए मुखलिस हैं तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहावलपुर सूबा बहाल करेंगे। बहावलपुर सूबा को कमीशन में शामिल करना बिला जवाज़ है। हम बहाली सूबा बहावलपुर की भरपूर हमायत करते हैं। लोगों के जज्बात से खेलने के लिए सराइकी सूबा का शोशा छोड़ा गया है, लेकिन कमीशन का चेयरमैन पंजाब से होना चाहिए था। 18 सितंबर से पहले अबूरी हुकूमत का ऐलान किया जाए, वरना तीसरा वज़ीर आज़म नहीं आने देंगे।
बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए चौधरी इजाजुल हक ने कहा, तो मैं समझता हूँ कि 18 सितंबर से पहले हुकूमत को एक अपूरी हुकूमत का ऐलान करना चाहिए और इलेक्शंस का ऐलान कर देना चाहिए। हमने अपने आप को कौम के आगे पेश नहीं किया 88 के बाद, एक मरतबा नहीं 100 मरतबा कहा कि हमारे वालिद का इक़्तिदार रहा जवाहर शहीद का 11 साल, अगर कोई करप्शन साबित कर देगा तो मुझे, वो तो इस दुनिया में नहीं, आप मुझे जिस चौक पे चाहें फांसी लगा दें। एक खुली किताब की तरह, हम कहीं भाग के नहीं गए, मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारा घर है, इसको नापना है, इसको नाप लो, इसको तोलना है। ये बैंक हैं, सारी दुनिया की एजेंसियों को हायर किया गया कि शायद इनके कोई बैरून मुल्क सासे हों। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात मैं कहूँगा कि उन्होंने हामिद नाज़र चड्ढा के सामने इस बात का इतराफ़ किया कि बाकी इल्ज़ामात और दुश्मनी और ये अपनी जगह, लेकिन इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ हम कोई करप्शन साबित नहीं करते। मैं ये आज फिर कहूँगा, आखिर में ये कहूँगा कि हुकूमत अगर मुखलिस है, अपोजिशन की हम जिम्मेदारी ले देंगे, हम सब के पास चल के जाएंगे, तो आप इस इलेक्शन से पहले सूबा बहावलपुर को बहाल करने का ऐलान करें। उन्होंने नए सूबों के हवाले से कहा कि कमीशन का चेयरमैन मेंबरान कमीशन की बाहमी मुशावरत से होना चाहिए। इजाजुल हक ने कहा कि हम दीगर सूबों के मुखालिफ नहीं, लेकिन लासानी बुनियादों पर कायम होने वाले सूबे मुल्की मुफाद में नहीं होंगे। सूबा बहावलपुर पहला सूबा होगा जो लासानियत से पाक होगा, क्योंकि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान ने आबादकारियों को खुद ज़मीनें तकसीम की थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने पंजाब असम्बली में बहावलपुर सूबा की करारदाद पेश की थी। इस मौके पर सहाफ़ियों के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर बहावलपुर अवामी पार्टी के सदर फारूक आज़िम मलिक ने कहा, जिस तरह उन्होंने भरपूर हमारे सूबे के मामले में तायीद की और पुरजोर हमायत की, बल्कि ये बात उनकी बिल्कुल एहसान है कि इन्होंने सबसे पहले पंजाब असम्बली में इस मसले को उठाया, और वो हम सब लोगों को कि बात भी चली वहीं से चली थी। हम जो हम पे एहसान करेगा, हम उसका बरमला एहसान का शुक्रिया भी अदा करेंगे, याद भी करेंगे। और इन्होंने नवाब बहावलपुर का नाम लेके एक तारीख़ी हक़ायक़, दुनिया में बहुत बड़े मुल्क हैं और इस्लामी मुल्क भी है, सऊदी अरब भी है, वहाँ पे आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको नेशनलिटी मिली। इकामे पे जाते हैं लोग, कितने लाखों रुपए भरते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि भाई किसी वक्त उसको निकाला जा सकता है। दुनिया में ये वाहिद रियासत थी बहावलपुर कि नवाब बहावलपुर ने आबादकारों के लिए, मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोले और उनको यहाँ का मालिक बनाया। आज जो एजाजुल हक साहब ने कहा कि भाई हमारी रेशो बराबर है, तो ये नवाब सादिक मोहम्मद खान का कारनामा था, और वो जिस इस्लामी जहन का था, और वो कहता था कि भाई ये सारे मेरी औलाद हैं, बल्कि उन्होंने तो अपनी रिश्तेदारी, अपनी बेटियां तक इन सारी कौमों में भी आई, और ये पहली रियासत थी दुनिया में जहां मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B+ NN।